हाय फ्रेंड, तो आज मैं लेकर आया हूँ अमीनो एसिड की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। तो पहले वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज़ अमीनो एसिड एंड अमीनो एसिड टाइप्स। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी आपको, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज अमीनो एसिड्स ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। अमीनो एसिड्स ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अमीनो एसिड्स हैव एसिमेट्रिक चीजल carbon centers, so they are optically active. Amino acids are deuterotatory and some acids are levorotatory depending upon the rotation of plane polarized light towards right or left respectively. D-amino acids are found in some proteins produced by C-building animals, compounds of peptidoglycan, cell wall and bacteria, and L-amino acids represent the best mosaic of amino acids found in proteins. तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को। एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अमीनो एसिड्स हैव एसिमेट्रिक चीजल carbon centers, so they are optical active. Amino acids are deuterotatory and some acids are levorotatory depending upon the rotation of plane polarized light towards right or left respectively. D-amino acids are found in some proteins produced by C-building animals, compounds of peptidoglycan, cell wall and bacteria, and L-amino acids represent the best mosaic of amino acids found in proteins. तो चलिए इसका हम बेसिक स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं एक बार। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ। तो इधर की तरफ हो जाएगा H3N प्लस, इधर की तरफ हो जाएगा C2 और हमारा नीचे की तरफ हो जाएगा CH3 और इधर की तरफ हो जाएगा हमारा H। तो ये हो गया L4 एलालीन। तो दूसरी तरफ देख लेते हैं हम HC। ऊपर की तरफ देखेंगे, यहाँ पे भी C2 हो जाएगा NH3 प्लस CH3। नीचे की तरफ हो जाएगा डी अमीनो एसिड एलानीन। अब जो मोस्ट टॉपिक है इसमें, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI क्वेश्चन वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, ज्विटर आयंस। तो क्या होते हैं ज्विटर आयंस, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। कभी कभी मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ ज्विटर आयंस। तो आज मैं आपको ज्विटर आयंस का टॉपिक है वो मैं स्टडी करवाऊंगा। द अमीनो एसिड्स एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स along with the ionizable R group of some amino acids function as weak acids and weak base। तो एक बार हम रिपीट देख लेते हैं। द अमीनो एसिड्स एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स along with the ionizable R group of some amino acids functions are weak acids and weak base। When on amino acids locking and ionizable R groups is dissolved in water at natural pH, it exists in a water solution as polarions or Jupiter ions, means at a certain pH the numbers of protonated ammonium group having positive charge and deprotonated carboxylic group having negative charge are equal, resulting in net natural charge. These ions are
now us deuterions substance having this dual nature are amphoteric and are of the 10 celled ampholytes. एक बार हम रिपीट करके देख लेते हैं ज्यूटर आयंस को. द अमीनो एसिड्स एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स along with the ionizable R group. Some amino acids function as weak acids and weak base. When one amino acids locking on ionizable R group is dissolved in water at natural pH is exist in a water solution is dipolar ions are Zwitter ions means at a certain pH the number of protonated ammonium group having positive charge and deprotonated carboxyl group having negative charge are equal resulting in net natural charge. Three ions are now as deuterions substance having this dual nature are amphoteric and are of the 10 celled ampholytes. तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम देख लेते हैं. तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ. देखो एच COOH दूसरी तरफ R हो जाएगा, ऊपर की तरफ H प्लस और यहाँ पे हो जाएगा H COO हो जाएगा यहाँ पर ऊपर माइनस. तो यहाँ पर हमारा R हो जाएगा और नीचे की तरफ आते हैं NH3 प्लस NCO और इधर हमारा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज. तो इधर की तरफ देखते हैं हम, ऊपर की तरफ H, इधर की तरफ R, इस साइड हो जाएगा हमारा COO माइनस NH2 माइनस NC इजकल टू -1. तो इसका हम दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं. H नीचे की तरफ हो जाएगा NH2, इधर की तरफ हो जाएगा R COO H, इधर की तरफ R, इधर की तरफ H COO, इसके बीच में तो C रहेगा प्लस NH2, इधर की तरफ माइनस हो जाएगा. तो इधर हो जाएगा नॉन आयोनिफॉर्म और इधर की तरफ हो जाएगा ज्यूटर आयोनिफॉर्म. और इनको बंद कर देंगे और तीसरी तरफ देख लेते हैं हम. ऊपर की तरफ H रहेगा, इस साइड R, बीच में COO माइनस, नीचे NH3 हो जाएगा, इधर की तरफ ये होगा
तो R ऊपर की तरफ H प्लस NH3 साइड में हो जाएगा COOH। तो अब हम बात शुरू करते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की। तो पॉजिटिव चार्ज की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या है इसकी बेसिक डेफिनेशन। तो शुरू करते हैं। द मोस्ट हाइड्रोफिलिक ग्रुप आर दोज दैट आर ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। द अमीनो एसिड आर इन विच द आर ग्रुप हैव सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चार्ज 8pH7 इज लाइसिन। तो इसका हम बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा पहले COO माइनस H3N माइनस C, इधर H CH2, नीचे की तरफ CH2 प्लस NH3 लाइसिन। तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, अर्गिनिन COO माइनस H3N प्लस C माइनस H। ये एक प्रकार की चेन होती है पूरी, जो एक स्ट्रक्चर में चलती है CH2 इसमें H2 NH है ये C इजकल टू NH2 प्लस NH2 अर्गिनिन। तो अब बात आती है नेगेटिव चार्ज की। तो नेगेटिव चार्ज की हम बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। नेगेटिव चार्ज R ग्रुप, द टू अमीनो एसिड्स हैविंग R ग्रुप with negatively charged 8pH aspartic and glutamic। तो इसमें COO माइनस H3N प्लस C, इधर H CH2 COO माइनस एस्पार्टिक एसिड। दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, COO माइनस H3N प्लस C H CH2 COO माइनस ग्लूटामेट। तो सबसे आसान तरीका है इसका